آئے تھے وہ بھی ٹرینڈ تھے، سولجرز تھے، وہ بھی سولجرز تھے، وہ کوئی رینجرز پولیس نہیں تھے جس طرح کہ وہ لڑے ہیں، عام نارمل پولیس اور نہیں تھی، ہمارے ساتھ شکایت آپ کو اٹھایا ہے، ایک اسپرے مجھے مارا ہے، پہلے انہوں نے میرا موبائل اندر کرانے کے لیے کہ کدھر پہنچ گیا ہے، اس کے بعد ان کو اٹھایا دھکا دے کے، ایک اسپرے مجھے مارا ہے، پہلے انہوں نے میرا موبائل اندر کرانے کے لیے کہ کدھر پہنچ گیا ہے، اس کے بعد ان کو اٹھایا دھکا دے کے، اس پہ کیا کہیں گے، رینجرز کے لوگ نہیں تھے، یہ میں وٹنس ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کی خدمت میں سید صدیر شاہ انصافی۔ آج 9 مئی ہے اور میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے جا رہا ہوں 9 مئی کے حوالے سے۔ 8 مئی کو بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک ایسے بے بنیاد کیس میں پیش ہونے کے لیے آئے، اور یہ ویڈیو وہ ویڈیو ہے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ میری سائیڈ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان عدالت میں تقریباً پہنچ چکے ہیں۔ سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات تھے یہاں پہ، اور اسلام آباد پولیس، رینجر، FC کے بہت سے وہ اہلکار وہاں پہ موجود تھے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں بیرسٹر گوہر، علی نواز اوان سمیت دیگر جو قیادت ہے، یا پھر عمران خان کی لیگل ٹیم کے لوگ ہیں، یا پھر انصاف لائر فورم جو ہے ILF اس کے لوگ ہیں، پارٹی ورکر ہیں۔ تو اب یہ ویڈیو کے مناظر جو آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اندر کے مناظر ہیں، اور یہ اس وقت مناظر ہیں ناظرین کرام کہ جب خان صاحب کی گاڑی مین گیٹ سے باہر تھی، اور میں بڑی مشکل سے اس وقت اندر پہنچ چکا ہوں۔ اور یہ ویڈیو میں نے تب ریکارڈ کی تھی جب عمران خان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس کی گرفتاری کے امکانات تھے۔ ناظرین کرام، آپ میری اس سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان تقریباً عدالت میں داخل ہونے کے لیے آ چکے ہیں، اور اس ٹائم آپ یہ مناظر اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کے دیکھ رہے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے، یہ ویڈیو میں نے آج تک کہیں پہ بھی ریلیز نہیں کی، یہ ویڈیو میں نے بنا کے رکھی تھی۔ اس میں وہ تمام تر ثبوت، وہ تمام تر جو مناظر ہوں گے وہ آج سے پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے۔ اس میں وہ لوگ کون تھے جنہوں نے عمران خان پہ تشدد کیا، جنہوں نے عمران خان کو بائیو میٹرک کرتے ہوئے شیشے توڑے، یہ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے پارٹی کے ورکر اور پارٹی کے لوگوں پہ حملے کیے۔ مناظر آپ اپنی اسکرین پہ دیکھیں گے، انشاءاللہ اس میں تمام تر وہ ثبوت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے ساتھ اپنا تعارف بھی کراتا چلوں کہ میں عمران خان کا ایک ادنا سا ورکر ہوں، اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہونے کا مقصد جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہے، پاکستان کو حقیقی معنوں میں آزادی کے لیے ہے۔ اور 9 مئی کے بعد تقریباً کچھ میرے اوپر FIRs بھی ہوئی، بہت سے مشکل وقت ہم نے دیکھے، لیکن ہم نے عمران خان کے کاز کو آگے لے کے چلنا ہے، اور ہم الحمدللہ نہ ڈرے ہیں نہ جھکے ہیں۔ اور ایک دن بھی 9 مئی اگر دیکھیں، آج 1 سال پورا ہونے والا ہے، اور میں 1 سال میں ایک دن کے لیے بھی گراؤنڈ سے پیچھے نہیں ہٹا۔ نہ ہمیں کسی چیز کا لالچ ہے، نہ ہمیں عہدے چاہیے، نہ ہمیں کوئی ایسی چیزیں، لیکن ہمیں جو چیز چاہیے وہ ہمیں پاکستان چاہیے، جو کلمہ کے نام پہ بنا تھا۔ اور عمران خان نے وہ نعرہ لگایا تھا کہ اس ملک کو میں نے حقیقی معنوں میں آزاد کرنا ہے، اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ ایک ایسے ملک میں پروان چڑھیں گی جہاں پہ ان کو ان کے حقوق ملیں گے، اور پاکستان ایک آزاد ریاست ہوگا۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب، اور آپ ویڈیو میں دیکھیں میری اس سائٹ پہ کہ بانی چیئرمین عمران خان اس ٹائم سیکیورٹی کے سخت پروٹوکول میں اس ٹائم اندر پہنچ چکے ہیں ہائی کورٹ کے اندر۔ یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد جو مناظر آنے والے ہیں ناظرین کرام، وہ مناظر جو آج سے پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے۔ یہ وہ مناظر ہیں جو دل کو آپ کی چیر کے رکھ دیں گے۔ ایک ایسی جماعت، ایک ایسی سوچ، ایک ایسا نظریہ رکھنے والا لیڈر جو قوم کے لیے ایک آزاد ریاست کا سوچتا ہے، جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگاتا ہے، اور جو اس ملک کو حقیقی معنوں میں آزاد ریاست بنانا چاہتا ہے۔ اس کا مقابلہ اس وقت اس کا مقابلہ ایک بہت بڑے مافیا سے ہے۔ اس مافیا میں جوڈیشری، اس میں اسٹیبلشمنٹ، اس میں پاکستان آرمی کے لوگ، اس میں
तमाम इदारों के लोग, जो कुछ हुआ पिछले तकरीबन 2-2.5 सालों में वो आप सब ने देखा। लेकिन आज 9 मई है और ये वीडियो आप जो मेरे साथ देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये है 8 मई की। इसमें हम आपको वो चीज़ें दिखाएंगे जो आपने नहीं देखी, लेकिन ये वो जुल्म था, ये वो एक दिन था जिसने पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करके रख दिया है। चाहे वो सियासी इस्तेहकाम, चाहे वो मुआशी हो, चाहे वो किसी भी तरीके से आप देखें, जो मुल्क हमसे बहुत पीछे चला गया बजाय पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए। और इसके पीछे कौन लोग थे वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो में इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो पंजाब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुसरत जमशेद चीमा साहिबा हैं, वो इस टाइम खान साहब के बिल्कुल फ्रंट पे आगे की तरफ जा रही है और खान साहब यहाँ से जाएंगे बायोमेट्रिक के लिए। और ये आप देख सकते हैं नाजरीन किराम कि यहाँ पे रेंजर की बहुत बड़ी तादाद पहुँच चुकी है। और ये उसी वक्त की है जिस वक्त मैं बिल्कुल हाई कोर्ट के अंदर मौजूद था और ये 8 मई का दिन है और तोशाखाना केस में खान साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। 200 से ज़ायद मुकदमात जो खान साहब पे बनाए गए थे वो तमाम तर बेबुनियाद केसेस थे। अगर एक ऐसा शख्स जो 70 साल से इस पाकिस्तान में रहता है उस पे 70 साल में एक मुकदमा इस तरह नहीं बनता जो इमरान खान पे पिछले 2 साल में बने। और 2 साल में बनने वाले मुकदमात 200 से ज़ायद मुकदमात हैं। और पिछले तकरीबन आज इस वीडियो को बनाने का जो 1 साल पूरा होता है, 1 साल पहले की मैं आपको बात बताऊं, अगर 1 साल इससे कबल हम तकरीबन सैकड़ों मुकदमात में लाहौर, इस्लामाबाद की मुख्तलिफ अदालतों में पेश हुए। उसके अलावा बलोचिस्तान में एक वकील कत्ल होता है, उसका मुकदमा भी इमरान खान पे दर्ज होता है। ये एक ऐसा मुकदमा था जो बिल्कुल बेबुनियाद था, जिसमें उनकी वकील के कत्ल की वकील जो थे कत्ल हुए थे उसकी फैमिली ने भी अपना बयान रिकॉर्ड कराया कि इसके पीछे इमरान खान का हाथ नहीं है। लेकिन चलते हैं वीडियो की जानिब। और ये आप देख सकते हैं अली नवाज अवान साहब हैं और शिबली उनके साथ यहाँ पे खड़े हैं। इमरान खान और नाज़रीन, इसी वक्त इमरान खान पे हमला हुआ था और इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी। नाज़रीन किराम, बड़ी मुश्किलों से मैंने ये कैप्चर किया और इसमें मैं आपको एक एक शख्स दिखाऊंगा कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इमरान खान पे तशद्दुद किया। नाज़रीन किराम, ये आप देख सकते हैं कि इमरान खान को गिरफ्तार करके बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं और ये निकाबपोश लोग, ये रेंजर, और ये रेंजर जो हैं ये बेसिकली रेंजर नहीं थे। जो मनाजर उस वक्त मैंने देखे थे ये बिल्कुल भी रेंजर नहीं थे, ये आर्मिड फोर्स के लोग थे और ये वो जंगजू थे। ये वो जंगजू जो एक मिशन के लिए यहाँ पे भेजे गए थे और वो मिशन ये था कि बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान को गिरफ्तार करना। और नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख सकते हैं कि बानी चेयरमैन इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश मुकम्मल तौर पे हो रही है, लेकिन बानी चेयरमैन इस टाइम गाड़ी में मौजूद है। और ये आप देख सकते हैं कि इमरान खान को रेंजर ने तकरीबन अपने मुकम्मल तहवील में ले लिया है और इमरान खान के पर्सनल स्काउट के जो लोग हैं, पर्सनल स्टाफ जो उनके गार्ड हैं, उन पे भी तशद्दुद किया जा रहा है। यहाँ पे लोगों को पीछे की तरफ धकेला जा रहा है और मैं उस वक्त यहाँ पे मौजूद था। मैं जो मनाजर देख रहा था वो बहुत अफसोसनाक थे। लेकिन बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट से पाकिस्तान रेंजर की वर्दियों में मलबूस आर्मिड फोर्स के लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और इमरान खान को अब ये बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं। अफरा तफरी का मनाजर है इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। ये वो शवाहिद है नाज़रीन किराम जो मैं आपको पूरे के पूरे दिखा रहा हूँ। ये बहुत एक मुश्किल वक्त था और इस मुश्किल वक्त को हम कभी नहीं भूल सकते कि वो लोग कौन थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ ये जुल्म किया। अगर हम देखें 9 मई के बाद 10,000 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। नाज़रीन किराम, आप इस वीडियो को गौर से देखें, इसमें जो जुल्म हो रहा है ये वही लोग हैं, लेकिन इनसे जवाब इनसे कोई नहीं मांग सकता। ये किसी को जवाबदा नहीं, ना ये इनका इख्तिसाब हो सकता है। कभी आपने सुना कि किसी ऐसे डिक्टेटर को जिन्होंने माशाअल्लाह लगाई उनको अदालत में खड़े करके उनको इंसाफ के कटहरे में लाकर उनसे उस जुल्म और उस आइन के साथ गद्दारी का हिसाब लिया गया हो। पाकिस्तान को आज़ाद हुए कई अरसा गुजर चुका है, लेकिन पाकिस्तान बजाय आगे जाने के पाकिस्तान पीछे की तरफ आ रहा है। और पीछे की तरफ आने की वजूहात जो है वो ये है कि आज दिन तक पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट, चाहे वो इमरान खान की हो, चाहे वो नवाज शरीफ की हो,
चाहे वो पाकिस्तान पीपल पार्टी जरदारी की हो, चाहे वो मुख्तरमा बेनज़ीर भुट्टो की हो, चाहे वो किसी भी ऐसे सिविलियन जो सियासी जमात जिन्होंने इक़्तिदार किया इस मुल्क पे, उनको कभी भी रियासत के लिए काम करने नहीं दिया गया। नाज़रीन किराम, वीडियो में आप देख सकते हैं इस टाइम कि एक तरफ थोड़े से लोग जिनमें वकला, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के क़यादत और कुछ वकला इस टाइम मौजूद, और दूसरी तरफ रियासत के वो चौकीदार जो रियासत की हिफाजत के दावेदार हैं, वो रियासत के सामने खड़े होकर किस तरह जुल्म कर रहे हैं। एक साबिक़ वज़ीर आज़म को वो गिरफ्तार करके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर से लेके चले गए और जून से तू तक नहीं हुई, लेकिन जब अगले दिन 9 मई को, आज से तकरीबन 1 साल कबल, जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने पुरअमन तरीके से पाकिस्तान के तमाम छोटे बड़े शहरों में बगैर क़यादत के एहतजाज के लिए निकली और उन्होंने इस गैर कानूनी इक़दाम के खिलाफ और अपने कायद इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ पुरअमन तरीके से एहतजाज किया, तो उस एहतजाज के वक्त पूरे मुल्क में इंटरनेट सर्विस बंद कर दी गई। पूरे मुल्क में टेलीविजन पे नहीं दिखाया जा रहा था कि क्या हो रहा है इस वक्त मुल्क में। एक किस्म का सिविलियन मार्शल लॉ लग चुका था उस वक्त, और 24 घंटों के अंदर 10,000 से ज़ायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेगुनाह वर्करों को गिरफ्तार किया जाता है। तकरीबन आधी से ज्यादा लीडरशिप को गिरफ्तार किया जाता है। बहुत सारे लोगों पे दहशतगर्दी के मुकदमात बनाए जा रहे हैं 3 MPO के तहत। क्या अपने आईन के लिए, अपने हुकूक के लिए आईन के मुताबिक एहतजाज करना दहशतगर्दी है? क्या पाकिस्तान इन लोगों को के कब्जे में है? पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है। पाकिस्तान का आईन पाकिस्तान के शहरियों को ये इजाज़त देता है कि वो पुरअमन एहतजाज करें। नाज़रीन किराम, ये वीडियो में आप मेरी देख सकते हैं इस साइड पे कि किस तरह वकला जो है वो इस टाइम एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कमरे के बाहर पहुंच चुके हैं और वो इंसाफ के लिए चीख रहे हैं। वो जज साहब को कह रहे हैं कि अदालत के अंदर से एक ऐसे शख्स जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह हैं, जो पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उसको घर से गिरफ्तार, हाई कोर्ट के अहाते से गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं और आप खामोश बैठे हैं। और मैं आपको एक मजे की बात यहाँ पे बताता चलूं कि 9-8 मई को जब खान साहब को गिरफ्तार कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो मोबाइल फोन लाने पे अंदर पाबंदी थी। हमें बहुत मुश्किलों से ये वीडियो रिकॉर्ड की गई। आप इस साइड पे देख सकते हैं कि इमरान खान के पर्सनल स्टाफ जो है सिक्योरिटी, उन पे तशद्दुद किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है और उनके साथ साथ वकला पर तशद्दुद किया गया है। ये मनाजर आप जो देख सकते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूम के बाहर के, लेकिन यहाँ पे भी रेंजर मौजूद है। बल्कि ये रेंजर नहीं, ये वो नामालूम लोग हैं जिन्होंने वजीराबाद में बानी चेयरमैन इमरान खान पे हमला किया। वो हमला नहीं बल्कि वो इमरान खान को कत्ल करने का एक मंसूबा था, लेकिन अल्लाह ताला ने इमरान खान को बचाया। और ये मनाजर आप देख सकते हैं कि चीफ जस्टिस के कमरे के बाहर जो है सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद हैं और यहाँ पे दूसरी साइड पे कुछ वकला हैं और कुछ वो लोग हैं जो पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, चाहे वो ओहदेदार हैं या वर्कर हैं। वो चीफ जस्टिस के कोर्ट रूम के बाहर क्यों गए हैं? वो चीफ जस्टिस साहब आपसे इंसाफ मांग रहे थे, आपसे अदालती फैसलों का एहतराम मांग रहे थे। कौन सा कानून इस बात की इजाजत देता है जब मुल्जिम अदालत में पेश हो और मुल्जिम को अदालत में पेश होने से पहले ही अदालती अहाते से गिरफ्तार किया जाए? इस बात की कोई आईन और कानून इजाजत नहीं देता। ना ही इन लोगों के पास कोई ऐसे ऑर्डर थे, ना ही इनके पास कोई ऐसे नोटिस थे जिसमें यह लिखा गया हो कि बानी चेयरमैन को आज गिरफ्तार किया जाता है। जब हम लाहौर से निकले इस्लामाबाद तक तो कहीं पे भी ये नोटिस ना मिला, ना कोई खबर चली कि बानी चेयरमैन को आज गिरफ्तार किया जाएगा। लेकिन आज एक ऐसे शख्स को जिसका जुर्म पाकिस्तान को हकीकी मानों में आजाद रियासत बनाने का है, जिसका मिशन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे बनने वाला वो वाहिद, वो दुनिया का पहला इस्लामी मुल्क जिसको रियासत मदीना के
मॉडल पर एक इस्लामी रियासत बनाने का है, जिसने पाकिस्तान के आने वाले नस्लों के मुस्तकबिल की आज़ादी के लिए जदोजहद की। ये आप देखें इस साइड पे कि ये वुहान का एक प्राइवेट पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है, ये बता रहे हैं क्या, आपको ये सुनाते हैं। ये सुने जरा, ये क्या कह रहा है, ये भी वही बात कर रहा है जो मैंने आपको चंद मिनट पहले बताई कि ये लोग रेंजर नहीं थी, ये आर्मेड फोर्स के लोग थे। सुने जरा। आपने ये वीडियो सुनी, इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में मौजूद एक खातून जो है मुसर्रत जमशेद चीमा, ये इस्लामाबाद में थी और इनको लाहौर में इन पे मुकदमात बनते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह खान साहब की गाड़ी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाहर लेके जाया जाता है और उसी दौरान चंद ही लम्हों बाद आप ये वीडियो में देख सकते हैं कि ऊपर एक हेलीकॉप्टर जा रहा है और उस हेलीकॉप्टर में अल्लाह जाने कि उसमें इन्होंने इमरान खान को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल किया, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर चारों तरफ पीटीआई के वर्कर मौजूद थे और वर्कर जो थे वो एक ही नारा लगा रहे थे कि हम ये जुल्म के ज़ाब्ते नहीं मानते, गैर कानूनी गैर आईनी तौर पे आप किस तरह इमरान खान को गिरफ्तार करते हो, जब तक इमरान खान गिरफ्तार है हम यहाँ से एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन नाज़रीन किराम, ये वीडियो आप मुकम्मल देखें, इसमें वो तमाम तर सबूत आपको मिलेंगे जिन्होंने इमरान खान को अदालत के अंदर किस तरह गिरफ्तार किया और किस तरह इमरान खान को फिर यहाँ से लेके जाया गया। अल्लाह जाने इमरान खान को इन लोगों ने कहाँ पे रखा। लेकिन जब 9 मई होता है, जब 9 मई और 9 मई के 2-3 दिन बाद बानी चेयरमैन को फिर रिहा किया जाता है और रिहाई के बाद पूरे मुल्क में एक मार्शाअल्लाह लग जाता है। और वो मार्शाअल्लाह कैसे मार्शाअल्लाह होता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नजरिए के साथ खड़े होने वाले लोग, जो इमरान खान के नजरिए के साथ खड़े होने वाले वर्कर, जो पाकिस्तान को हकीकी मानों में आजाद रियासत बनाने के लिए जदोजहद करने वाले लोग, उनको पूरे मुल्क में उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाता है। एक एक वर्कर को गिरफ्तार किया जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 24 घंटों में 10,000 से ज्यादा वर्कर्स को गिरफ्तार किया गया। बहुत से हमारे पार्टी के ऐसे ओहदेदारान थे, रहनुमा थे या फिर पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वकला थे, उन्होंने तो कुछ ने मुल्क छोड़ दिया और कुछ अभी तक आज दिन तक वो अंडरग्राउंड है, जिसमें आप मुराद सईद को देख लें, कासम सूरी को देख लें और बहुत से लोग हैं। मैं किस किस का नाम लूंगा। सिर्फ ये नहीं बल्कि इन्होंने इतना जुल्म किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले लोगों को ब्लैकमेल किया गया, उनकी नंगी वीडियो बनाई गई, उनकी करप्शन के स्कैंडल निकाले गए, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको फोर्स किया गया, उनके बच्चों को घरों से उठाया गया, उनकी नाजीबा वीडियोस बनाई गई। आजम स्वाति की आपने वीडियो देखी होगी, आपने और बहुत से लोगों को देखा होगा। मुसर्रत जमशेद चीमा को आप देख सकते हैं साइड पे वीडियो में, वो इस्लामाबाद में थी। फिर उनके साथ क्या जुल्म हुआ, उनके छोटे छोटे बच्चों को इन्होंने उठाया और उनकी वीडियोस इनके वालिदैन को भेजी गई। कहा गया कि आप खान साहब का साथ नहीं छोड़ते तो हम आपके बच्चों को मार देंगे, हम आपकी फलां कर लेंगे, आपकी वीडियो शेयर कर लेंगे। नंगी वीडियोस जितनी भी बनती है, उनके पीछे कौन लोग हैं? वो ये लोग हैं जिन्होंने खान साहब को गिरफ्तार किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने लंदन में बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ एक प्लान बनाया और आज पाकिस्तान उस मुसीबत से नहीं निकल रहा। पाकिस्तान की मुआइशियत तकरीबन तबाह हो चुकी है और आलमी एस्टेब्लिशमेंट जो वाशिंगटन से जिसके ताने बाने मिलते हैं, वहां से रिजीम चेंज ऑपरेशन और लंदन प्लान के मुताबिक सारा प्लान बनाया गया और उसके मुताबिक खान साहब को एक मरतबा 8 मई को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद जब हालात खराब हुए और इनसे हालात काबू नहीं हो रहे थे, इन्होंने खान साहब को दोबारा रिहा किया और खान साहब को हम फिर यहाँ से इस्लामाबाद से लाहौर लेके जाते हैं और हम खान साहब को घर तक पहुंचाते हैं। जब खान साहब घर में होते हैं, कुछ अरसा खान साहब से मुलाकातों के लिए आने वाले लोगों को लाहौर जमान पार्क में बाहर से उठाया जाता है
اور ان کو مختلف مقدمات میں گرفتار کیا جاتا ہے، جن پہ 3 MPO لگائے جاتے ہیں، دہشت گردی کے مقدمات بنائے جاتے ہیں۔ لیکن میرے عزیز ہم وطنوں، میرے پاکستانیوں، آج پاکستان تحریک انصاف کی تقریباً آدھی سے زائد قیادت جو ہے وہ ٹوٹ چکی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان کے قریب ترین لوگوں کو پارٹی سے دور کیا گیا ہے۔ پرویز خٹک کو آپ دیکھ لیں، محمود خان کو آپ دیکھ لیں، فواد چودھری کو آپ دیکھ لیں، عثمان ڈار کو آپ دیکھ لیں، بہت سے لوگ ہیں۔ تو اگر ظلم کی بات کریں تو میں آپ کو کیا کیا سناؤں گا۔ خدیجہ شاہ کو دیکھ لیں، صنم جاوید کو دیکھ لیں، یاسمین راشد کو دیکھ لیں، عمر سرفراز چیمہ کو دیکھ لیں، یا پھر آپ علی محمد خان کو دیکھ لیں، شہریار افریدی کو دیکھ لیں، آپ شاندانہ گلزار کو دیکھ لیں، آپ ایک ایسا نام آپ کے سامنے لینے جا رہا ہوں، آپ میاں عباد فاروق کو دیکھ لیں، آپ اس ظلم کو دیکھ لیں جب میاں عباد فاروق کا ایک معصوم بیٹا جس کا کوئی سیاست سے تعلق نہیں، نہ اس کا کوئی گناہ ہے، کہتے ہیں بچوں کی مثال جو ہوتی ہے وہ فرشتوں جیسی ہوتی ہے، اور وہ بچہ اپنے والد کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے ترس کر اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے قاتل کون ہیں؟ یہ سوال بنتا ہے۔ اس کے قاتل وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان پہ یہ ظلم کیا، جنہوں نے ہمارے ورکر پہ ظلم کیا، جنہوں نے خان صاحب پر قاتلانہ حملے کیے، جنہوں نے خان صاحب پر 200 سے زائد مقدمات بنائے۔ میرے عزیز ہم وطنوں، میں کیا آپ کو داستانیں سناؤں گا، لیکن یہ وہ ویڈیو ہے جو 8 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے بنائی تھی، اور یہ آپ کے سامنے شیئر کرنا بہت ضروری تھی۔ تو باقی میں آپ سب لوگوں کے سامنے ایک بہت اہم بات رکھنا چاہتا ہوں، میرے پیارے اور میرے عزیز ہم وطن پاکستانیوں، خدا کے لیے ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے، ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اور جب ہمارا اتفاق اور اتحاد ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم اس بدماشوں کے خلاف، اس مافیا کے خلاف، ان غداروں کے خلاف جو نہ ہمارے ساتھ بلکہ پورے ریاست پاکستان کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، اپنی ذاتی مفادات، اپنے اقتدار۔ اگر آپ دیکھیں جب رجیم چینج آپریشن ہوتا ہے، بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی حکومت کو گرایا جاتا ہے، پھر اسے گرفتار کیا جاتا ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق اگر حکومت چلی جاتی ہے تو 90 دن کے اندر دوبارہ ملک میں الیکشن ہوتے ہیں اور دوبارہ حکومتیں اقتدار میں آتی ہیں اور وہ ریاست کو سنبھالتی ہیں۔ انہوں نے نگراں سیٹ اپ لگایا۔ کاکڑ کو آپ دیکھ لیں، پنجاب میں ایک ایسے بدبودار چہرے کا نام جو میں لینا ہی نہیں چاہتا، محسن نقوی، اس کو دیکھ لیں، آپ اس کو دیکھیں جن کو بلوچستان سے اٹھایا اور ریاست وفاق حکومت میں منسٹریاں دی، اور آپ محسن نقوی کو دیکھیں، IG پنجاب کو دیکھیں، اور پنجاب میں بہت جو کچھ ہوا، جو ظلم ہوا، اس کے پیچھے محسن نقوی، IG پنجاب، مریم نواز اور یہ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور جو ظلم پاکستان میں ہوا، جو ریاست کے ساتھ غداری کی، خدا کے لیے ہمیں اتفاق اور اتحاد کی ضرورت ہے۔ پاکستان آرمی بھی ہماری ہے، پاکستان کے ادارے بھی ہمارے ہیں، اور یہ پاکستان بھی ہمارا ہے۔ یہ کسی کے باپ کا ملک نہیں ہے جس پہ یہ آ کے بیٹھ کے آئے اور لوٹ کے واپس چلے جائیں۔ اور یہ جو نوکری پیشہ لوگ ہیں، یہ جو آتے ہیں 20-20 سال، 24-24 سال یہ نوکریاں کرتے ہیں، پھر ایکسٹینشنیں لیتے ہیں، پھر 3-3 سال کے لیے ان کی مدت ملازمت بڑھائی جاتی ہے، اور یہ ملک کو اس طرح لوٹتے ہیں بے دردی سے جیسے ایک چور آ کے کسی کا گھر لوٹ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ہمیں پاکستان کو بچانا ہے، ہم نے پاکستان کو آزاد کرنا ہے، اور اس کے لیے ہم نے عمران خان کو لانا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم سب نے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت ہے، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں، ہم سب نے ایک مٹھی ہو کے اس پاکستان کے لیے نکلنا ہوگا، اپنے بچوں کے لیے نکلنا ہوگا۔ ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں پاکستان کو آزاد کرنے کے لیے۔ جب پاکستان 1947 میں آزاد ہو رہا تھا، اس کے لیے بھائی بہن سے بچھڑا، ماں باپ بچوں سے بچھڑ گئے، کچھ
कितनी कुर्बानियां दी लोगों ने। आज हम जिस रियासत में बैठे हैं, हम मस्जिद में जाके अजान दे के नमाज पढ़ लेते हैं, हम बाजार में चले जाते हैं, हम जहाँ जाते हैं जो मर्जी करते हैं, हम पे किसी कुफार की हुकूमत नहीं है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे ऊपर इस वक्त जो मगरबी यहूदियों ने, मगरबी लावियों ने, मगरब से ताल्लुक ताकतवरों ने हम पे जो टोले मुसल्लत किए हैं, जो हुक्मरान मुसल्लत किए हैं, ये पाकिस्तान के वफादार नहीं, ना ये इदारों के वफादार है। और ये माफिया ने तमाम तर इदारों में अपने लोग बिठा के पाकिस्तान को यरगमान बनाया है। आखिर में आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, और आप सब ने पाकिस्तान के लिए निकलना होगा, आपने इमरान खान की रिहाई के लिए निकलना होगा, और इंशाअल्लाह ताला बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान हकीकी मानों में एक आज़ाद रियासत बनेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।